अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जब केसीआर इख्तिदार में थे तो सब खुश थे, इख्तिदार खो भी जाए तो आवाम का प्यार ख़त्म नहीं होता। केसीआर फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR का दावा। पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों समेत रियासती अवाम के लिए हुकूमत कर रही है कारकर्दगी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया दावा। साबिक़ा MLC के कविता की जानिब से कायम करदा सियासी जमात तेलंगाना रक्षणा सेना के नाम को 15 दिनों में बदल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अवामी इतराज़ात के पेश नज़र जारी किया हुक्मनामा। उड़ीसा और मणिपुर में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। उड़ीसा में तकरीबन 20 लाख वोटर्स का नाम हज़फ, मणिपुर में तकरीबन 1,58,000 वोटर्स का नाम काट दिया गया। राम मंदिर नजराना चोरी मामले के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और RSS सरबराह मोहन भागवत असल जिम्मेदार, कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने लगाया संगीन इल्ज़ाम। ईरान के साबिक़ रहबर आला अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। 9 जुलाई को मशहद में रोज़े इमाम रज़ा में होगी तदफीन। और यूक्रेनी दारकूमत कीव पर रूस के मिसाइल हमले, कम से कम 8 अफराद हलाक, मुतादिद दीगर हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। जब KCR इख्तिदार में थे तो सब खुश थे, इख्तिदार खो भी जाए तो अवाम का प्यार ख़त्म नहीं हुआ। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने यह दावे किए। उन्होंने ये भी कहा कि KCR 2 साल के बाद दोबारा फिर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। BRS के वर्किंग सदर KTR का कहना था कि न पानी का मसला था न बिजली का, अवाम खुश थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है। KTR ने दावा किया कि BRS फिर इख्तिदार में आएगी। నేను మీ అందరిని మా హమాలి సోదరుల్ని కోరేది ఒకటే నేను మిమ్మల్ని కోరేది, రాష్ట్ర అధినేత రాష్ట్రాన్ని నడిపే వ్యక్తి సద్బుద్ధి కలిగిన వాడైతే, మంచి బుద్ధి కలిగిన వాడైతే రాష్ట్రంలో పేదలు గాని పెద్దలు గాని అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. రాష్ట్రంలో హమాలీలు గాని లేదా మిల్లు యజమానులు గాని అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. 10 ఏళ్లు మనం అదే చూసినాం. KCR గారి ప్రభుత్వంలో రైతు బాగున్నాడు, అట్లాగే పారిశ్రామికవేత్తలు బాగున్నారు. కరెంటు బాగుంటే పారిశ్రామికవేత్తలు బాగుండే, కార్మికులు బాగుండే, అంతా సుభిక్షంగా ఉండే. కానీ కొంత ఏమరుపాటుతోని, కొంత మరి మన చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల మనం అధికారం కోల్పోయినాం. బాధపడేదేం లేదు. ఇంతకుముందు సీనన్న చెప్పింది కరెక్ట్. అధికారం పోతే పోయింది, కానీ ప్రజల్లో మమకారం తగ్గలేదు. అధికారం పోతే పోయింది, కానీ ఇవాళ కొన్ని వాస్తవాలు మనకు కూడా తెలుస్తా ఉన్నాయి. కుండ వలిగితే వలిగింది కానీ కుక్క బుద్ధి తెలిసిందని ఎవడు మనోడు ఎవడు పగోడు మనకు కూడా అర్థమైతా ఉన్నది. ఎవరైతే ఇవాళ ఈ కష్ట సమయంలో కూడా మనతో నిలబడి ఉన్నారో, 18వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం చేసుకుంటున్నాం. మేము హమాలీలం మా గుండెల్లో KCR ను పెట్టుకున్నాం. మీరు రావాలే అని చెప్పి ఇక్కడికి పిలుచుకున్న మా హమాలి సోదరులకు మీ రుణం తప్పకుండా తీర్చుకుంటా, మీ ప్రతి సమస్య పరిష్కారం చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. సీనన్నకు కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, ఇట్లే గట్టిగా ఉండండి, మిమ్మల్ని చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. సరే, మా మీద అంటే 2 కేసులు పెడతాడు, మీ మీద కేసులు పెడితే ఏమవుతుందో ఆయనకు కూడా ఎరికే, ఈప్ సాఫ్ అవుతుందని తెలుసు. అందుకే మిమ్మల్ని ఎవ్వడు ఏమీ చేయలేడు. ఐకమత్యంగా ఉండండి, గట్టిగా ఉండండి. ఇంకొక 2 ఏళ్లలో తిరిగి KCR గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసుకుందాం. బ్రహ్మాండంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఏమున్నా తప్పకుండా పరిష్కారం చేసుకుందామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, और उधर दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि वो पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के मसाइल जानते हैं, इसलिए हुकूमत तमाम महाज़ों पर एक साथ तवज्जो देते हुए कारकर्दगी कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS ने अवामी फलाह के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, जबकि कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत तेलंगाना की अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। చాలా మంది ఏం చేస్తాడయ్యా, అచ్చంపేట అడవుల్లో నుంచి వచ్చిండు, ఆయన గతం అనుభవం లేదు, ఆయన ప్రభుత్వాన్ని నడపలేదు, వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు దొరలు కాదు, వాళ్ళ గడీలు లేవు, ప్రజల మీద పెత్తనం చెలాయించేది ఆయనకు రాదు అని అవహేళన చేసిరు. నేను ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకునే వేదిక మీద నుంచి, నేను పుట్టింది గ్రామం,
గ్రామంలో అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలను, అన్ని సమస్యల్ని, ప్రతి పేదవాడి కష్టాన్ని చూసుకుంటూనే నేను పెరిగిన. వ్యవసాయం తెలుసు, దుక్కి దున్నడం తెలుసు, విత్తనం వేయడం తెలుసు. భూమికి విత్తనానికి ఉన్న బంధం ఏందో పేదవాడికి, పరిపాలన చేసేవాడికి ఉండవలసిన అవగాహన ఏదో అవగాహనతోని గ్రామీణ ప్రాంతంలో పెరిగిన. రాష్ట్రం అంటే, దేశం అంటే ఎక్కడో లేదు, గ్రామాల సమూహమే తెలంగాణ రాష్ట్రం. 12,000 పైచలకు గ్రామ పంచాయతీలు అంటేనే తెలంగాణ రాష్ట్రం. 6 లక్షల పైగా ఉండే ఈ మొత్తం ఈ దేశంలో అన్ని గ్రామాలు, చిన్న చిన్న పల్లెలు కలిస్తేనే ఈరోజు భారతదేశం. సమస్యలు ఎక్కడుంటాయి, సమస్యలు ఎక్కడ పరిష్కరించాలి, ఈ అవగాహన గడీలలో ఉన్న దొరలకు లేకపోవచ్చు. గ్రామంలో సమస్యలు పరిష్కారం అయితే మండలం పరిష్కారం అయినట్టే. మండలంలో సమస్యలు పరిష్కారం అయితే నియోజకవర్గంలో పరిష్కారం అయినట్టే. నియోజకవర్గాలలో పరిష్కారం అయితే జిల్లాలో పరిష్కారం అయినట్టే. జిల్లాల సమస్యలు పరిష్కారం అయితే రాష్ట్ర సమస్యలు పరిష్కారం అయినట్టే. అన్ని రాష్ట్రాలలో సమస్యలు పరిష్కారం అయితే దేశం అభివృద్ధి చెందినట్టే. ఇప్పుడు చెప్పండి మిత్రులారా, కొండారెడ్డిపల్లిలో దళితులు, గిరిజనులు, బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీలు, మహిళలు, పేదవాడి మధ్యలో పెరిగిన నేను, పేదల సమస్యలు తెలిసిన నేను ఆ సమస్యకు పరిష్కారం కనిపెట్టలేనా? పరిపాలన నేను అందించలేనా? పాలమూరు బిడ్డలు పరిపాలనకు పనికిరారా? తట్ట పనికి మనమే కావాలి, పార పనికి మనమే కావాలి, పలుగు పనికి మనమే కావాలి, పార పనికి మనమే కావాలి. పరిపాలనకు మాత్రం పాలమూరు బిడ్డ వద్దనే దురహంకారాన్ని బొందబెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రతి పాలమూరు బిడ్డ మీద లేదా అని నేను ఈరోజు మీకు విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా. साबिक़ एमएलसी के कविता की जानिब से कायम करदा सियासी जमात तेलंगाना रक्षणा सेना के नाम पर बड़ी तादाद में एतराज़ात और शिकायत मौसूल हुई, जिसका इलेक्शन कमीशन ने इंकशाफ किया और इसके पेश नज़र कविता को मुतबादिल नाम तजवीज़ करने की भी हिदायत दी है। इस सिलसिले में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने कविता को बाज़ाब्ता मकतूब रवाना किया है। कविता की जानिब से कायम करदा सियासी जमात तेलंगाना रक्षणा सेना के नाम पर अवाम की जानिब से शदीद एतराज़ात सामने आए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को नाम तब्दील करने की हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि अगर 15 दिनों के अंदर 3 मुतबादिल नाम तजवीज़ नहीं किए गए तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई दरख्वास्त को बंद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब तेलंगाना रक्षणा सेना ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दिया और कहा कि उन्हें कमीशन की जानिब से सिर्फ 2 एतराज़ात से आगाह किया गया है। पार्टी ने कहा कि बाकी एतराज़ात की तफसीलात बताए बगैर मुतबादिल नाम तजवीज़ करने का मुतालबा कैसे किया जा सकता है। पार्टी ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्टी के नाम के मामले पर कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चाहे चीफ मिनिस्टर हो या वज़ीर आज़म हो या वज़रा जो संगीन मुजरमाना मुकदमात में 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहेंगे, उनके दफ्तर से हटाए जाने के सिलसिले में हम भरपूर तायद कर रहे हैं। ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जाएगी। ताहम उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर कांग्रेस इसकी मुखालिफत करेगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस्लाहात चाहती है और कांग्रेस इसके लिए रुकावट बन रही है। With regard to the CM and PM are ministers who will be in the jail for more than 30 days in a serious criminal cases are entitled to be removed from their offices. And this amendment is likely to come up in the parliament, and the Congress surprisingly are with their nature, they are going to oppose it. That's what they say. In fact, it was the Congress who also brought the amendment of those who are involved in criminal cases, they should not file nominations, nominations should be rejected. It was their proposal then during Manmohan Singh ji and Rahul Gandhi tore the paper. Now when system is being cleared, where decriminalization of the political office are being made, why Congress should oppose this particular move? I think the Congress wants to oppose whichever BJP government brings, whether it is good or good for the people or otherwise. The Congress leader, Mr. Mallu Ravi, member of Parliament, who says that Congress Swayam Sevak Sangh is already there, and it is because of RSS BJP is winning and all these things. He must understand BJP is winning because it has got people's support.
And no one will have any objection if the Congress is coming up with any new outfit. Already they have many outfit. Whichever outfit comes, they have to work under a dynasty only. So I think they are disturbed with the activities of RSS because they are penetrating people and they are exposing the anti-national mindset of many organizations and political parties. In this background, the Congress leaders are disturbed and that's why they are making comments on RSS. शहर हैदराबाद के नापरी में वाक़ फौजदारी अदालत की इमारत की तीसरी मंजिल पर आज सुबह आग लगी, जिसके बाद महकमा फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया गया। इमारत के अमले ने आग के शोले देखते ही फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड अमले को इत्तला दी, जिसके बाद 2 गाड़ियां पहुंची और आग को दूसरी मंजिलों तक फैलने से पहले ही काबू में कर लिया गया। हुकाम ने कहा कि फायर ब्रिगेड के एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े हादसे को टाल दिया है। इब्तदाई जांच से मालूम हुआ कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम इस आग लगने की वजूहात का तमाम जावियों से जायज़ा लिया जा रहा है। शमशाबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। आज सुबह आउटर रिंग रोड पर खड़े एक ट्रक को कार ने पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही हिलाकत हुई, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में खातून और कमसिन बच्चा भी शामिल है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई और इस वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के बारकस के करीब मरियम कॉलोनी में एक 28 साल नौजवान को मुबैना तौर पर चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश के लिए छापे मारे। मकतूल की शनाख्त फहद बिन अब्दुर्रहमान के तौर पर की गई, जो गाड़ियों के वॉशिंग सर्विस सेंटर के मालिक थे। वो शादीशुदा थे और पसमानदगान में बीवी और बेटा शामिल है। इब्तदाई जाँच के मुताबिक फहद की मुलजिमीन से मुकामी जिम में दोस्ती हुई थी, ताम गुज़िश्ता चंद दिनों से तनाज़ा था। मुकामी ज़राए के मुताबिक वारदात से एक दिन कबल ही मुलजिम चाकू लेकर फहद के घर पहुँचा, लेकिन मकतूल के भाई की मुदाखलत से मामला वक्ती तौर पर टल गया। पुलिस के मुताबिक रात लगभग 2:30 बजे मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर फहद पर चाकू से हमला किया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए और फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। मिडनाइट में हमारा लोगों को एक इंफॉर्मेशन आया और उसका चाचा अहमद बिन सैयद बलकसर बोलते इमिडिएटली हमारा नाइट राउंड ऑफिसर ASI बालापुर का उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल का ओवैसी हॉस्पिटल है ना, उधर गया। उधर जाने के बाद एक बच्चा है, उन्होंने ब्रॉड डेड है। उसका नाम फहद बिन अब्दुल रहमान बलकसूर है, 29 ईयर्स का है। उन्होंने मैकेनिक है। उन्होंने और उसका दोस्त बूम और सालम बूम, वो तीनों इधर बातचीत करने का टाइम पे ये मरियम कॉलोनी में इसका फार्म हाउस है, प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है इसमें। दोनों को फ्रिक्शन हुआ, उधर इसका स्टैबिंग करा, उसकी वजह से एक्सपायर हो गया। और दोनों को बाद में पकड़ लेता हम। फहद बिन अब्दुर्रहमान के रिश्तेदारों ने मीडिया से बातचीत की है। उनका इल्ज़ाम है कि साबिक़ा दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो गई थी और कत्ल का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कातिल का असल नाम सईद बिन फैसल है। आइए देखते हैं उनका ये बयान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भतीजे फ़हद बिन अब्दुर्रहमान बलकसर का मर्डर होगा, तो फ़ोन आया रात के 2:45 बजे। मैं आया तो कार में लेके जा रहे थे, मैं बैठ के चले गया। दो बच्चे थे, 2:22 को आए यहाँ। उन्होंने 2:22 को आए थे इधर। फिर बाद में मेरे को फ़ोन आया 2:45 बजे, तो मैं आया इधर, आके भतीजे को लेके गया दवाखाना वैसी। लेके जाओ बोले। वो बाम के बच्चे की गाड़ी थी, वो फैसल भाई के भाई का गाड़ी। लेके जाओ भाई, अहमद भाई लेके जाओ बोले। तो लेके चले गया मैं बच्चे को, मतलब देखने तो क्या हुआ क्या नहीं, जाओ कौन भरा बोले। बाद में फिर घर वहाँ गए तो डेड हो गया बोले, कौन बहुत भगा बोले। तो बाद मैं अब यहाँ आया, आके देखा तो यहाँ पूरा कैमरे में जब अंदर देख रहे थे, सईद बिन फैसल बाम का बच्चा जा रहा था, भाग रहा था।
तो ये वजह होने की भी लड़ाई ये लड़ाई क्या है, पहले से दोस्ताना था। मतलब हमारा भतीजा बिल्डर है, स्कॉच। हुआ था क्या बहस नहीं नहीं, एक दिन पहले हुआ था कि घर पे आके उन्हें चाकू ले लेके आया, बात कर तो बोले तो हमारे उसका खलेरा भाई बोला नको भाई जा, उन्हें नहीं है, पहले के बात याद करो आप कैसे दोस्ताना था बोल के बोले, फिर उन्हें चले गया। अब हमारे भतीजे को बोले नको भाई देख बात कर ले क्या है, वो तो बात कर ले तो तुम बीच में नको आओ बोले। फिर वो दूसरे दिन आज ही बुलाए शायद उसको। ये मानने वालों का नाम क्या है? मानने वाले का नाम सईद बिन फैसल बाम। वीडियो भी है उसकी, और पुलिस वाले लेके गए, हमारे वीडियो लेने नहीं दिए, वो लेके गए। कौन सा एरिया में हुआ ये? मरियम कॉलोनी, बाकोबान फार्म हाउस के पीछे। ये जहाँ पे बा मर्डर हुआ, ये भी फार्म हाउस है क्या है ये? इसको मशहूर है बाम फार्म हाउस बोल के, बाम अखाड़ा है वो, और वो उसमें कंपनी है, प्लास्टिक कंपनी है। पुरान शहजाबाद के इलाके काली खबर के पास से एक मुनफरिद सांप को जिंदा पकड़ लिया गया। इनको उसको दो मुंह के नाम से लोग जानते हैं। इस सिलसिले में सांप को रेस्क्यू करने वाले नौजवान ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। कहाँ मिला भैया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं सैयद रऊफ, एम काली खबर, एम प्रेसिडेंट दारुशफ़ा काली खबर। आज मैं मस्जिद इलाही के पास कुछ काम से गया था, तो एक 4-5 कुत्ते सांप को देख के भौंक के काटने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा नुकसान भी पहुंचा दिए सांप को हम लोग देखे। ये इसको अक्सर जो लोग दो मुँह का सांप बोलते, असल में इसको दो मुँह नहीं रहते भाई, इसका मुंह और दुम में फ़र्क नहीं रहता, मुंह भी सेम दुम भी सेम रहती, तो इसको दो मुंह का सांप की अफवाह फैलाते। असल ये है सांप बहुत ही नाजुक और कमज़ोर सांप है, देख सकते आप सुने। और इसको रेड सैंड बॉम्ब बोलते, रेड सैंड बॉम्ब। इसको हम गूगल पे सर्च करें, हम लोग मीचौक पीएस को भी इंटीमेशन करें। इसको अब क्या है देख के जू पार्क में रेस्क्यू करेंगे, जू पार्क में दे देंगे। आज हम लोग ये सांप की जान बचाए, हम लोग 4-5 दोस्त मिलके ये सांप की जान बचाए। तो अब किसको देना है? पीएस में बोले आप? हाँ, मीचौक पीएस में इंटीमेशन दे के जू पार्क में छोड़ देना है ये सांप। जी, वो लोग आते ना, उन लोगों को बोले तो ले लेके जाने। फ़ोन किए हम लोग, वो लोग 1-2 मिनट बोले, हम लोग बुला के दे देंगे इंशाल्लाह। ये ठीक। कहीं को बोले तो ये सांप ऐसा है, बहुत ही एक मुलायम सांप है भाई, लोग डरते हैं दो मुँह का सांप। और ये अक्सर ये अफवाह भी फैलाते हैं इतने लाख का उतने लाख का, इतने, ये कुछ भी नहीं है, ये एक जानवर है, इसको लोग अफवाह में फैलाते। देख सकते आप, ये दो मुंह नहीं रहते सांप को, एक दुम और मूंछ रहता, दोनों सेम रहते। और अब आइए नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। उड़ीसा मणिपुर में होटल लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी एनएसआईआर के बाद ड्राफ्ट होटल लिस्ट जारी कर दी गई। उड़ीसा में तकरीबन 20 लाख वोटर्स का नाम हज़फ होने और मणिपुर में तकरीबन 1,58,000 वोटर्स का नाम काटे जाने की खबर है। दोनों ही रियासतों में अब दावों और एतराज़ात का अमल शुरू होगा, जिस पर 4 अगस्त तक समाअत होगी। दोनों रियासतों में हतमी होटल लिस्ट 6 सितंबर को शाया होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में 19,34,000 वोटर्स पर मुश्तमिल ड्राफ्ट होटल लिस्ट तैयार की गई। इसकी जानकारी मणिपुर के चीफ इलेक्शन अफसर अरुण कुमार सिन्हा की जानिब से दी गई। उन्होंने कहा कि फहरिस्त खुसूसी गहरे नज़रसानी के दौरान घर घर जाकर गिनती करने के बाद जारी की गई है और इस दौरान उड़ीसा में एसआईआर के बाद वोटर्स की तादाद अब 3,13,00,000 ही रह गई है। राम मंदिर नजराना चोरी मामले पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्हें यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो इस मामले पर बयान तक देने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं कांग्रेस तर्जुमान का ये बयान। I don't think people have any faith in this meeting called by a trust which in itself is under a huge cloud of suspicion. So how can the trust decide who amongst them is clean? Not a single trustee has come forward to take moral responsibility of what's going on there. You can't expect the Prime Minister of India to take any responsibility. He's never taken any responsibility for anything that goes wrong under his watch. Nor has the RSS taken moral responsibility, because these are the two people, Mohan Bhagwat and Narendra Modi are the two people who are directly responsible for what's happening in Ayodhya or what happened in Ayodhya. We have seen, sir, there is another 2 temples where the probe started,
Yesterday we have heard that about Bake Bihari Dham, that people are now asking their questions and asking for a committee. Now there is another temple, Badrinath Temple. Temple committee made a committee on to probe the irregularities. How do you see both? Increasing reports of thefts being taking place in all these places of worship point to a particular pattern. The pattern being that for the BJP and RSS, religion is just a means to achieve their end of acquiring political power and enriching themselves and their people. So we want to ask the RSS again, is this the reason why you don't want to register yourself? Because you don't want any accountability? Is this the reason why you don't put your account books on the table for people to see? Can we expect Congress leadership to visit Ram Mandir, sir? How does that help? How does that help? Several of our leaders have gone there. Some of them have even donated there. So I don't understand this question. How does it help the ongoing problem in the Ayodhya temple's trust? It has nothing to do with the Congress. It has nothing to do with any other party or any other individual. It is BJP and RSS project. And in this project, there is dacoity happening. In this project, there is no accountability. Sir, Mamata Banerjee claimed that she had been house arrest. He want to visit a place in South Kolkata. There 12-year-old girl been raped and murdered, sir. So, a rape which happens under the watch of the opposition becomes a huge issue. And rightly so. All rapes should become a huge issue until the society and the governments wake up. But if a rape happens under the watch of the BJP government, you put the opposition in house arrest. Why? All rapes are equally horrifying, and they cannot be looked at through the prism of which political party do you belong to. Sir, Congress party will oppose the 130th amendment issue because where CM will be, if CM will be in custody, they will be removed, sir. Over the last 12 years, how many BJP ministers or chief ministers were probed by the ED or the CBI? So this 130th amendment is also targeted at the opposition. And there are several aspects of this debate which we have in the past also delved into, and we are opposing it. Prashant Kishore will be fight election. Everybody has a right to fight elections. Is Congress going to support? Is there any In due course of time, you will know. ईरान के साबिक़ रहबर आला अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात की अदायगी सरकारी तौर पर जारी है। इनके लिए तेहरान और क़ुम में ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए। अली ख़ामेनी अमरीका और इसराइल के हमलों में हलाक होने वाले उनके दीगर अफराद ख़ानदान की नमाज़ जनाज़ा इतवार के रोज़ तेहरान के बड़े मजहबी सक़ाफ़ती मरकज़ इमाम ख़ुमैनी मुसल्ला में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। ईरानी हुकाम का कहना है कि रसूमात में 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ अफराद तक की शिरकत मुतवक्को है। ये रसूमात नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दी गई हैं और 7 दिनों पर मुहित है। 7 जुलाई को ख़ामेनी की मैयत ख़ुम मुंतकिल की जाएगी और वहाँ भी नमाज जनाजा होगी। 8 जुलाई को मैयत नजफ़ इराक़ मुंतकिल की जाएगी, जहाँ रोज़े इमाम अली में जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद करबला में आखिरी रसूमात होंगी, जिसके बाद 9 जुलाई को मशहद में रोज़े इमाम रज़ा में तदफ़ीन अमल में लाई जाएगी। इसराइली वज़ीर नेतन्याहू ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की बयान की तरदीद की और कहा कि सिर्फ अमरीका ही इसराइल का वाहिद ताकतवर इत्तेहादी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे दीगर दोस्त भी हैं, जैसे कि एक छोटा सा मुल्क जो इंडिया कहलाता है। नेतन्याहू के इस बयान को काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के बयान की तरदीद की और कहा कि सिर्फ अमरीका ही इसराइल का वाहिद ताकतवर इत्तेहादी नहीं है। वाज़ेह है कि अमरीका और ईरान में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद बाज़ इसराइली वज़रा की जानिब से अमरीकी इंतज़ामिया पर तनकीदें की गई। इसका जवाब देते हुए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अगर मैं इसराइली काबीना में होता तो पूरी दुनिया में अपने वाहिद और ताकतवर इत्तेहादी यानी अमरीका को निशाना न बनाता। तनकीद करने वाले इसराइली वज़रा को मुखातब करते हुए जेडी वेंस ने यह भी कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान जिन दिफाई हथियारों ने आपके मुल्क को बचाया उनमें से 2/3 अमरीकी थे और उन्हें अमरीकी हुनरमंदों यानी माहिरीन ने तैयार किया था और अमरीकी टैक्स दहिंदगान ने उसके लिए डॉलर्स भी दिए थे। एक इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से इस पर रद्द-ए-अमल पूछा गया। जब उन्होंने अमरीकी नायब सदर का बयान सुना तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था। जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि पहली बात तो ये है कि मैं अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की काफ़ी इज्जत करता हूँ, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक करूं। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इस बात की निशानदही करना होगी कि ट्रंप व्हाइट हाउस में हमारे अजीम दोस्त हैं और मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, लेकिन हमारे दीगर दोस्त भी हैं, जैसे कि एक छोटा सा मुल्क जो इंडिया कहलाता है। नेतन्याहू ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि इंडिया की आबादी 1.4 अरब है। नेतन्याहू ने इस मौके पर यह भी दावा किया कि इंडिया में इसराइल को बहुत ज़्यादा तायीद हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। रूस की जानिब से यूक्रेन के दारकूमत कीव और उसके अतराफ में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। तुर्किया में नेटो सरबराह इजलास से अहम कबल हुए इस हमले में दारकूमत कीव में 7 अफराद हलाक हुए और दारकूमत के शुमाल मगरबी वाक़ ज़िला बुचा में एक शख्स हलाक हुआ, जबकि कम से कम 24 दीगर जख्मी भी हुए हैं। हमले के नतीजे में रिहायशी इमारतों में आग भी भड़क उठी। कीव के मेयर के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक रहा और शहरियों को पनागाहों में रहने की हिदायत जारी की गई। कीव रीजन की फ़ौजी इंतज़ामिया ने कहा है कि दुश्मन ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। यह हमला एक हफ्ते से भी कम अरसे में दारुल-हुकूमत और उसके गिरदोनवा पर दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। जब केसीआर इख्तिदार में थे तो सब खुश थे, इख्तिदार खो भी जाए तो आवाम का प्यार ख़त्म नहीं होता। केसीआर फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR का दावा। पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों समेत रियासती अवाम के लिए हुकूमत कर रही है कारकर्दगी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया दावा। साबिक़ा MLC की कविता की जानिब से कायम करदा सियासी जमात तेलंगाना रक्षणा सेना के नाम को 15 दिनों में बदल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अवामी इतराज़ात के पेश नज़र जारी किया हुक्मनामा। उड़ीसा और मणिपुर में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। उड़ीसा में तकरीबन 20 लाख वोटर्स का नाम हज़फ, मणिपुर में तकरीबन 1,58,000 वोटर्स का नाम काट दिया गया। राम मंदिर नजराना चोरी मामले के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और RSS सरबराह मोहन भागवत असल जिम्मेदार, कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने लगाया संगीन इल्ज़ाम। ईरान के साबिक़ रहबर आला अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। 9 जुलाई को मशहद में रोज़े इमाम रज़ा में होगी तदफीन। और यूक्रेनी दारकूमत कीव पर रूस के मिसाइल हमले, कम से कम 8 अफराद हलाक, मुतादिद दीगर हुए जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।